Good afternoon, everyone. Today we are back with newspaper analysis of 16 September, that is today. Today we would be covering 5 important articles. I'll try and cover all 5 of them, but if not, you can access the content from our application as well as from the Telegram channel. So the newspaper that we have covered are the Hindu, Indian Express and the Assam Tribune. कल का और परसों का जो आपने रिस्पांस दिया उसके लिए वी आर एक्चुअली ग्रेटफुल, वी आर थैंकफुल एंड जो आप इंपॉर्टेंट फीडबैक दे रहे हो दोज आर रियली वैल्यूएबल फॉर अस एंड वी आर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ दोज एंड वी आर ट्राइंग टू इनकलकेट दोज इन आवर प्रेजेंटेशन एंड द डिस्कशन. ओके, like we spoke in yesterday's lecture and I had communicated via message that we would be soon coming up with a program that would help you clear your prelims examination, that will make the procedure of clearing prelims examination lot easier than what it is today. उसको हम एक हैबिट में इनकलकेट करने वाले हैं, उसको एक हम संस्कार में इनकलकेट करने वाले हैं, जिसके लिए आपको एग्जाम के पहले 2 महीने बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी. इट विल बी अ स्मॉल स्टेप, but on a daily basis it will come. The overall idea, the overall structure, we would be discussing it with you very soon once we have finalized a full proof 100% result giving strategy. Once we have that, we'll share it with you and it will happen very soon. Okay, so for that stay tuned. Coming back to the today's discussion, आज हम लोग जो 5 important article discuss करने वाला है. First one is International Ozone Day. Today is International Ozone Day. Next is Women in India's Growth Story. Third would be कर्नाटका ने अपना पूरे इंडिया में फर्स्ट एवर ट्रांसजेंडर का सेंसस लॉन्च किया. ठीक है, सो दैट इज गोइंग टू बी वन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डिस्कशन बिकॉज इट टॉक्स अबाउट द इंक्लूसिविटी इन पॉलिसी मेकिंग. नेक्स्ट इज सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर ऑन वक्फ एक्ट. वो काफी न्यूज में था, काफी डिस्कशन में था. वक्फ एक्ट काफी टाइम से उसके बिल पास हुआ था, उसके अगेंस्ट कुछ केसेस दर्ज हुए थे, पिटिशंस गई थी सुप्रीम कोर्ट में. उसमें से कुछ पिटिशंस है, अराउंड 60-65 पिटिशंस वर अगेंस्ट दैट एक्ट. तो उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जजमेंट दिया है. वी वुड बी डिस्कसिंग दैट. एंड देन 16 कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, जो CCC जिसे कहा जाता है, वो रिसेंटली इट वाज हेल्ड. तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे. ईस्टर्न कमांड जो होता है आर्मी का, ईस्टर्न कमांड इज इन कोलकाता. वहाँ पे ये रिसेंटली हुआ था, 2 दिन का कॉन्फ्रेंस होता है. इट वाज 16. उसके बाद so let's not waste any time, let's move. This is our Telegram channel. You may consider joining it by scanning this QR code. This is about me. I think I've spoken disproportionately a lot about myself than I should have, but it's a part and parcel of the procedure, so I had to speak. But now you know few things about me. Let's not spend time over here. This is about our next batch, GS Foundation batch. It is more suitable for those who are working professional, क्योंकि उनके हिसाब से ज़्यादा beneficial ये batch होगा. As you can see, we have well experienced faculties who have so far converted dreams of certain aspirants into reality, and that number is not small. Around 700 officers have already been selected. Let's start with first one is the International Ozone Day. Ozone is integral part of our environmental studies. Ozone stands for O3. Let me just switch the color so that it gives you better visibility. Ozone O3 जो हमारा environment का subject का very crucial aspect है. Environment, biodiversity, climate change में हम लोग ozone के बारे में पढ़ते हैं. Today, that means 16th September, आज world observes International Day of Ozone, in commonly known as World Ozone Day. क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि इसी दिन 1987 में, है ना, 1987 मतलब आज से लगभग 37 years ago मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को एक्सेप्ट किया गया था. इम्प्लीमेंटेशन उसका स्टार्ट हुआ था. ओजोन, लाइक मोस्ट ऑफ यू आर अवेयर, ओजोन क्या है? ओजोन एक गैस है जो
ट्रोपोस्फियर में भी थोड़ा बहुत दिखाई देता है एंड स्ट्रेटोस्फियर में भी दिखाई देता है। स्ट्रेटोस्फियर वाला ओजोन जो है उसे कोलोकियल लैंग्वेज में, मतलब कॉमन लैंग्वेज में, गुड ओजोन कहा जाता है। जो ग्राउंड पे है, मतलब जो ट्रोपोस्फियर में, उसको बैड ओजोन कहा जाता है, बिकॉज इट हैज सर्टेन रीजंस। गुड ओजोन क्यों? बिकॉज गुड ओजोन इसलिए क्योंकि वो जो यूवी रेडिएशन है, जो हार्मफुल सन के जो रेडिएशन है, वो अर्थ तक पहुंचने नहीं देता है। ठीक है, तो उसको बचाना बहुत जरूरी है। इट वाज ऑब्जर्व्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि ओजोन में कुछ होल बन रहा है ना, एंड दैट थ्रू दैट होल the UV rays were penetrating inside and that caused multiple health hazards। बहुत कुछ हुआ, तो उसके बारे में डिस्कशन हुआ। देन केम द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट करके उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है। ये सब का डिस्कशन ये वाले आर्टिकल में, तो हम उसको, मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया, विल जस्ट क्विकली गो थ्रू इट। ठीक है, सो बैकग्राउंड क्या है, लाइक वी डिस्कस कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज adopted in 1987 on the same day, that is 16 सितंबर 1987 को इसका अडॉप्शन हुआ था। क्या है ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? क्या है ये? ओजोन को जो होल बना था उसको फिर से ब्रीच करने के लिए, उसको फिर से ओजोन की हेल्थ को फिर से रिसरेक्ट करने के लिए एक कन्वेंशन के अंडर उसका प्रोटोकॉल बना के, एक रूल्स एंड रेगुलेशन का सेट बना के, इसके बाद दुनिया के सारी कंट्रीज ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस जो होती है, जिनको शॉर्ट फॉर्म में ओडीएस कहा जाता है, ओडीएस, ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस, जिसमें लार्जली क्लोरीन वाले एलिमेंट होता है जो ओजोन को रिड्यूस करते हैं, उनका यूटिलाइजेशन, या वो जो केमिकल्स है, वो जो एलिमेंट्स है, उनका यूज वर्ल्ड वाइड रिड्यूस करना है टू द एक्सटेंट के ओजोन डिप्लेशन रुक जाए। इसके बारे में जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो बना था वो था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, इट इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोटोकॉल्स, क्योंकि शायद ही कोई और प्रोटोकॉल है जिसमें इतने लोगों ने एक्सेप्ट किया है, उसको रिकॉग्नाइज किया है, उसके लिए काम किया है और सक्सेसफुली रिजल्ट डिलीवर कर रहा है। सो विल जस्ट गो थ्रू इट क्विकली। ये it is like I said, it is one of the most successful global environmental agreements। 98% reduction in ozone depleting substances, जिसको ODS कहा जाता है, 98% रिड्यूस हुआ है। यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जो ग्लोबल गवर्निंग बॉडी है इन टर्म्स ऑफ एनवायरमेंटल बिहेवियर ऑफ द वर्ल्ड, वो ये कहता है कि 21st सेंचुरी, मतलब जिस सेंचुरी में हम अब रह रहे हैं, उसका जो मिड है, लाइक 2050s 2060s तक, मतलब मिड ऑफ द 21st सेंचुरी तक, अगर ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को इसी तरीके से इंप्लीमेंट कर लिया, तो जो ओजोन डिप्लीशन हुआ था वो 100% रिकवर हो सकता है ना। दैट इज व्हाट इट सेज कि ओजोन रिकवरी इज पॉसिबल बाय मिड 21st सेंचुरी इफ कमिटमेंट्स कंटिन्यू। इतना सक्सेसफुल अगर कोई प्रोटोकॉल रहा है तो देयर आर लेसन्स टू बी लर्न, बहुत कुछ सीखने जैसा है। तो इसमें क्या लेसन्स मिला? एक, ग्लोबल सॉलिडारिटी, क्योंकि ओजोन किसी का पर्सनल प्रॉपर्टी तो है नहीं, इट्स अ ग्लोबल कॉमन, उसके लिए सबको एक साथ मिलकर ही काम करना पड़ेगा। तो यूनिटी फॉर डिलीवरिंग एंड वर्किंग, ये यहाँ पे दिखाई दिया, ग्लोबल सॉलिडारिटी। फिर साइंटिफिक इनोवेशन, क्योंकि उसमें साइंटिस्ट की जरूरत थी। पब्लिक अवेयरनेस, लोगों को अवेयर कराया गया, एंड दैट लेड टू पॉजिटिव एनवायरमेंटल चेंज, है ना। इसके निटिग्रिटीज क्या है, थोड़ा सा क्विकली हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये आपके प्रीलिम्स में काम आ सकता है। जैसे मैंने पहले कहा कि देयर इज ओजोन विच इज एट द स्ट्रेटोस्फियर, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में गुड ओजोन कहते हैं, जो ग्राउंड लेवल पे उसे बैड ओजोन कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में, ये कोई टेक्निकल टर्म नहीं है। ठीक है, सो लोअर एटमोस्फियर और व्हाट वी कॉल एज ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर में जो ओजोन है, we call it as harmful ozone, that is bad atmosphere, bad ozone, and the one which is in the upper atmosphere which protects us from UV ultraviolet radiation of the sun, उसे हम कहते हैं गुड ओजोन। ठीक है, बस इतना ही अभी के लिए आप समझ लीजिए, इससे ज्यादा अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं। फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द आर्टिकल, लेट्स सी कि इसके लिए इंडिया ने क्या किया। फ्रॉम द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया, इंडिया ने ओडीएस जो है, मतलब जो ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस है, ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस, इनको रेगुलेट करने के लिए रूल्स लाए थे। दोज रूल्स वर इंप्लीमेंटेड इन 2000, है ना, विच रेगुलेट्स ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस इन इंडिया। अब इंडस्ट्रियल
डेवलपमेंट जो होती है, जो फैक्ट्री है, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, एसी, रेफ्रिजरेटर, कूलिंग इंस्ट्रूमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें जो मटेरियल यूज होता है सीएफसी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स वगैरह, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये जो है वो ओजोन डिप्लीट करता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को अगर उसको रिप्लेस करना है विथ नॉन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, तो उसको फाइनेंशियल सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट लगेगा। वो टेक्निकल सपोर्ट देता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इट प्रोवाइड्स बोथ फाइनेंशियल एज वेल एज टेक्निकल सपोर्ट टू इंडस्ट्रीज हु आर शिफ्टिंग टू ओजोन सेफ टेक्नोलॉजी। थोड़ा सा इसको आसाम और नॉर्थ ईस्ट के कंटेक्स में भी देख लेते हैं। आसाम और नॉर्थ ईस्ट के कंटेक्स में जो हेल्थ इंपैक्ट रहा है, जो हाईएस्ट इंसिडेंस ऑफ नॉन मेलानोमा स्किन कैंसर इन इंडिया, ये आईसीएमआर का स्टडी है जो दिखाई दिया था कि ये आसाम में हुआ है। ठीक है, इसका एग्रीकल्चर एंड इकोसिस्टम पे भी इंपैक्ट होता है, क्योंकि इकोसिस्टम बहुत फ्रजाइल हो जाती है, इट बिकम्स अ वेरी फ्रजाइल इकोसिस्टम। गवर्नमेंट के स्टेप क्या है? एक इको क्लब जैसे स्कूल्स में अवेयरनेस फैलाने के लिए किया गया है। जो रेफ्रिजरेटिंग प्रैक्टिसेस है उनके ऊपर मॉनिटरिंग किया गया है एंड पब्लिक आउटरीच किया गया बाय आसाम साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री। आसाम गवर्नमेंट का जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है, इट हैज implemented programs to have public outreach towards the harmful impact of the ODS, ozone depleting substances, and the important role ozone plays in our healthy life, healthy environment. इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक कि उन्होंने बहुत बढ़िया प्रोग्राम रन किए। अब इसमें चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस इसमें ये है कि हम लोग कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज खरीद लेते हैं, लेट्स से कि रेफ्रिजरेटर, कोई फ्रिज वगैरह खरीद लिया, तो देर आर, आई नो सर्टन फैमिलीज जिनको शादी में फ्रिज गिफ्ट मिला था, जिनको शादी में शादी होके उनके 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, अभी भी वही फ्रिज यूज कर रहे। देर आर मेनी फैमिलीज, वी ऑल ऑफ अस नो कि जो 20-20, 25-25 साल पुराने रेफ्रिजरेटर को यूज कर रहे हैं, है ना। कुछ कुछ फैमिलीज ऐसे भी है, दिल्ली में मैंने देखा हुआ है कि कुछ कुछ फैमिलीज के एसीज जो एयर कंडीशनर जो वो 20-20 साल पुराना है, वो अभी भी वही यूज कर रहा है। तो अगर आप पुराना ही रेफ्रिजरेटर, पुराना ही एसी यूज कर रहे हो, तो जो नए रेगुलेशन आ रहे हैं, जो नए चेंजेस आ रहे हैं, जो टेक्नोलॉजिकली इवॉल्व सिस्टम है, उसको आप यूज नहीं कर रहे हो, तो अभी भी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को आप हवा में छोड़ ही रहे हो ना, राइट। सो यूज ऑफ आउटडेटेड रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स, ये रिलीज करते हैं सीएफसी, एचसीएफसी एंड एचएफसी। अब ये जो है ना सीएफसी, सीएफसी इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सीएफसी स्टैंड्स फॉर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो इसमें क्लोरीन है। एचसीएफसी हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसमें भी क्लोरीन है, लेकिन ये जो एचएफसी है इसमें क्लोरीन नहीं है। सो टेक्निकली ये जो हाइड्रो एचएफसी जो है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, जिसमें क्लोरीन नहीं है, इट इज नॉट ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, सीएफसी है, एचसीएफसी है, लेकिन एचएफसी नहीं है। बट फिर भी एचएफसी को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में यूज किया गया है। व्हाई? क्योंकि जब आप एचएफसी को अगर नहीं यूज, मतलब बैन करोगे, एचएफसी को अगर कंटिन्यू करोगे, तो एचएफसी का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो है, मतलब GWP, ये एक यूनिट होता है जो कैलकुलेट करता है कि कोई भी एलिमेंट जब नेचर में जाएगा तो ग्लोबल वार्मिंग में वो कितना रोल प्ले करेगा। उसका बेसिक यूनिट होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। फॉर एग्जांपल CH4 मिथेन है, तो 6 टाइम्स मोर है। देयर आर सर्टन सल्फर हेक्साफ्लोराइड है, वो 34 टाइम्स मोर है कंपेयर टू द कार्बन। वैसे ही HFC का बहुत हाई ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है, और इसीलिए उसको भी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ऐड किया गया कि इसको भी एलिमिनेट करना है। अब बात ये कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था 1987 में, है ना, तब HFC इसका पार्ट नहीं था। HFC वाज एडेड बाय कैगाली अमेंडमेंट। कैगाली अमेंडमेंट 2016 का है, 2016 में कैगाली अमेंडमेंट से इसको ऐड किया गया था। बट आपको कंफ्यूजन इसमें हो सकता है कि HFC इज ऑल्सो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। द आंसर इज नो, HFC इज नॉट ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, बट इट हैज हाई ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, दैट इज व्हाई इट इज एडेड। ठीक है, अब इसमें अब चैलेंजेस और क्या है कि डिस्पोजल जो है वो इनफॉर्मल है। कूड़ा कुचरा, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, कुछ भी है तो इनफॉर्मली डिस्पोज कर देते हैं, उसको साइंटिफिकली डिस्पोज नहीं किया जाता।
देन हाई कॉस्ट ऑफ स्विचिंग टू इको फ्रेंडली टेक फॉर स्मॉल यूजर, जो छोटे घर से है या छोटे इंडस्ट्रीज वाले हैं, वो कैसे इतना पैसा इन्वेस्ट करके नए टेक्नोलॉजी के ऊपर स्विच करेंगे, है ना, ये बड़ा कंसर्न होता है। देन वी नो दैट देयर इज इलीगल स्मगलिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग हैपनिंग ऑफ बैंड ओडीएस। सरकार ने तो बैन कर दिया, लेकिन इलीगली उसका स्मगलिंग भी हो रहा है और तो इलीगली मैन्युफैक्चरिंग भी हो रहा है ओडीएस का, क्योंकि वो चीप सब्सटेंसेस है। व्हाट इज वे फॉरवर्ड? यस, अवेयरनेस को बढ़ाओ। देन मॉनिटरिंग एंड एनफोर्समेंट का जो मैकेनिज्म है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है टू मॉनिटर एंड टू एनफोर्स द लॉ, उसको स्ट्रेंथन करो। देन जो एसएमईज है, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो है, उनको फाइनेंशियल एंड टेक्निकल एड प्रोवाइड करो टू स्विच टू एडवांस टेक्नोलॉजी, टू स्विच टू नॉन ओडीएस मटेरियल, ठीक है। देन प्रमोट रिसर्च इन सस्टेनेबल रेफ्रिजरेशन, जिसमें लो ओडीएस हो, लो ग्रीन हाउस गैस पोटेंशियल वाला हो। एंड देन इनकरेज द सिटीजन पार्टिसिपेशन। जब तक लोगों को ही अवेयर नहीं करोगे, उनका सिटीजन पार्टिसिपेशन नहीं होगा, तब तक कोई, ठीक है। Okay, let's go through this MCQ. This MCQ is very simple. I have explained it to you abhi just. Just look at the statement which is wrong and you'll be able to get the answer with elimination technique. Okay? Just go through it. I'll give you 30 seconds. Consider the following statement regarding the Montreal. Acha. Consider the following statement regarding the Montreal Protocol. It was adopted in 1987 to phase out ozone depleting substances. Yes, option 1 is correct. So option B is eliminated. Hydrofluorocarbons HFC are also covered under the original Montreal Protocol. No, original में नहीं था. It was added in 2016. Kigali और Kigali amendment. So statement 2 is wrong. So statement 2 गया. The correct answer is 1 and 3. You don't need to read the third statement. Elimination technique से ही आपको आंसर मिल जाता है. नेक्स्ट, मेन स्ट्रीमिंग विमेन इन इंडियाज ग्रोथ स्टोरी. अब इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं. इंडिया का ग्रोथ स्टोरी का मतलब 21st सेंचुरी में इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी in the next couple of years, and then probably if we continue our progress, if we continue our growth story, we might end up becoming probably the second largest economy. वो बहुत बड़ी बात होगी, but then उस वहां तक पहुंचने के लिए हमारी ग्रोथ स्टोरी जो अभी चल रही है, द इकोनॉमिक रेट ऑफ ग्रोथ दैट शुड रिमेन कंसिस्टेंट एंड इन फैक्ट इट शुड improve. How is it going to improve? One of the aspect is improving the labor force participation rate of women in formal sector. आज की डेट में इंडिया में विमेन का वर्क फोर्स में पार्टिसिपेशन बहुत कम है कंपेयर टू ग्लोबल, है ना. जो डेवलप कंट्रीज है उसके कंपेरेटिवली इंडिया का पार्टिसिपेशन कम है. अब वो कितना कम है, उसका फायदा क्या होगा, उसको कैसे ऐड किया जा सकता है, दीज आर द थिंग्स दैट वर डिस्कस्ड इन दी दिस पर्टिकुलर आर्टिकल. ठीक है. अब ये इसका बैकग्राउंड क्या था कि गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश जो है, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, यूपी गवर्नमेंट ने फर्स्ट टाइम विमेन्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इंडेक्स, एक इंडेक्स लॉन्च किया टू understand and to objectively evaluate and put a matrix to know
कि विमेन का एम्पावरमेंट कहाँ तक कितना हुआ है। तो दैट इज विमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इंडेक्स। ये इंडिया में किस स्टेट ने पहले लॉन्च किया? उत्तर प्रदेश। ठीक है, यूपी हैज डन इट। उसके बैकग्राउंड में ये आर्टिकल आया हुआ है। करंट स्टेटस क्या है इंडिया का? एक जो इंडिया का जो जीडीपी है उसमें ओनली 18% इज कंट्रीब्यूटेड बाय द विमेन, मीनिंग 82% कंट्रीब्यूशन इज फ्रॉम मेन। ठीक है, 18% ये है विमेन का कंट्रीब्यूशन, विच इज वेरी लो। पोटेंशियल इज वेरी हाई, उनका कंट्रीब्यूशन का शेयर बहुत आगे बढ़ सकता है। अभी के अभी करंट सिचुएशन में 196 मिलियन, 196 मिलियन का मतलब है लगभग 20 करोड़, 20 करोड़ विमेन है कि जो एम्प्लॉयबल है, जिनको नौकरी दी जा सकती है, जो बाहर है। करंटली फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वो दैट इज ओनली 41%, एंड आउट ऑफ विच ओनली 18% आर इन फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। सो विमेन जो काम कर रही है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो मतलब उसमें से सिर्फ 41% ही विमेन काम करती है, और वो 41% में से भी सिर्फ 18%, मतलब 41% का 18% की बात हो रही है, 100% का 18% नहीं, 18% फॉर्मल सेक्टर में, और बचे हुए 82% विमेन आर इन इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर में नौकरी करने के बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, रूल्स एंड रेगुलेशन इतना स्ट्रिक्टली अप्लाई नहीं होता। मैटरनिटी लीव हो गया, पेंशन हो गया, टैक्सेशन हो गया, फिक्स सैलरी, सैलरी के बेसिक मिनिमम नॉर्म्स, हॉस्पिटलाइजेशन के फैसिलिटीज, प्रोविडेंट फंड की फैसिलिटीज होगा, या मैटरनिटी लीव हुआ, या फिर वीकली लीव, सिक लीव, ये जो फिक्स कोटा फॉर्मल सेक्टर में मिल जाता है वो इनफॉर्मल सेक्टर में नहीं मिल जाता। एंड दैट इज व्हाई द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ विमेन पार्टिसिपेशन हु आर पार्टिसिपेटिंग इन इनफॉर्मल सेक्टर इज हायर देन द फॉर्मल सेक्टर। एंड वो एक मेजर कंसर्न है कि 18% ही फॉर्मल सेक्टर में, मतलब 82% जो है वो है। ये करंट सिचुएशन है। व्हाई व्हाई डू वी नीड, व्हाई देयर इज अ नीड फॉर विजिबिलिटी? एक, जब तक हमारे पास जेंडर्ड डेटा नहीं होगा, मतलब क्लियर डेटा नहीं होगा, तब तक पॉलिसी कैसे बनाओगे? इट इज वेरी क्रूशियल टू हैव नॉलेज, इट इज वेरी क्रूशियल टू हैव डेटा टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, है ना? डिसीजन कोई भी लेगा, would it be informed decision? No. We, in order to have informed decision, we need to have data set, ऑब्जेक्टिव डेटा चाहिए, उसके लिए वो उसकी नेसेसिटी है। तभी तो जो सिस्टमेटिक बैरियर्स है वो तभी तो दिखेंगे, नहीं तो दे विल रिमेन हिडन। लैक ऑफ विजिबिलिटी क्या होती है? इफ दे आर नॉट विजिबल, व्हाट आर द इश्यूज इन्वॉल्व? अगर वो नहीं पता तो लैक ऑफ विजिबिलिटी लीड्स टू रिफॉर्म स्टॉल, मतलब रिफॉर्म्स नहीं हो पाते हैं, एंड देन जो एक्सक्लूडेड है वो एक्सक्लूडेड ही रहते हैं, उनके ऊपर काम करने का मौका ही नहीं मिल पाता। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो है, मतलब मॉस्पी जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, कहा गया? हाँ, अरे हाँ, जो मॉस्पी है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट, लिखा हुआ है कि जो अर्बन एरियाज में LFPR, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वो मेल का 74% था 2023 में, और 75% हो गया 2024 में। दैट इज, एंड स्लाइटली फॉर फीमेल, मतलब 25.5 से 25.8% में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, सो बेसिकली अभी भी फीमेल पार्टिसिपेशन रेट बहुत कम है। अब लेट्स टेक अ लुक एट द विमेन्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इंडेक्स। ये जो विमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इंडेक्स है, WEE, which has been brought in by यूपी गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लेकर है, फर्स्ट इन इंडिया है। उसमें क्या चेक करने वाले? 5 लीवर्स पे चेक होगा। एक होगा एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड स्किलिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, लाइवलीहुड एंड मोबिलिटी, सेफ्टी एंड इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर। सी, विमेन के लिए ये बहुत ज्यादा क्रूशियल है। नंबर 5, दैट इज सेफ्टी एंड इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी इंक्लूसिव ऑफ द बेसिक और कॉमन रिक्वायरमेंट ऑफ विमेन, है ना? तो ये
fifth number is very crucial. Why it is needed? So that उनके लिए safe, उनके लिए welcoming system, organizational structure बनाया जाए जहाँ पे वो feel करे कि they want to work, they want to contribute and they want to grow. Okay? इसका सिग्निफिकेंस क्या है? एक जो मेल एंड फीमेल का जो गैप है वो दिख जाएगा. वंस यू हैव द विजिबिलिटी ऑफ द इनइक्वालिटीज, एक्शन आप उसके ऊपर ले सकते हो. सो टू इन ऑर्डर टू टेक दैट एक्शन यू नीड दैट डेटा. अब एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है जिसमें बसेस वगैरह चलती है, उसमें दे आइडेंटिफाइड कि उस डिपार्टमेंट में विमेन बहुत कम काम करती थे. there were very few women who were working in the Department of Transport in Uttar Pradesh government. They highlighted certain, they identified, and then they redesigned their recruitment. जो रिक्रूटमेंट का तरीका है उसको रीडिजाइन कर लिया है ना. अगर ड्राइवर के लिए ले रहे, अगर कंडक्टर के लिए ले रहे, तो उन्होंने वो जो रिक्वायरमेंट थी उनको मोल्ड कर दिया एज पर द सुटेबिलिटी फॉर विमेन. देन एडेड इंफ्रास्ट्रक्चर. फॉर एग्जाम्पल विमेन के लिए हर स्टैंड पे, हर जहाँ पे बस डिपो वहां पे अलग से रेस्ट रूम बिल्डअप किए गए है ना. उसमें हाइजीन, क्लीनलीनेस, इनका भी ख्याल रखा गया. सो बेसिकली व्हाट दे डिड इज दे सिस्टमैटिक बैरियर को उन्होंने आइडेंटिफाई किया एंड देन उसको सॉल्व करने के लिए कोशिश की. अब फॉर एग्जाम्पल दे रियलाइज ये डेटा क्यों काम का होता है. एक अब देखिए कि जो विमेन है दे डोमिनेट इन स्किलिंग एनरोलमेंट. गवर्नमेंट के जो अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं इसमें अपस्किलिंग किया जाता है, स्किल्स को बढ़ाया जाता है, ऐसे कोर्सेज जो होते हैं वहां पे विमेन का पार्टिसिपेशन तो बहुत है ना. दे आर गेटिंग एडमिटेड, दे आर टेकिंग मोर एडमिशन दैन द मेल. लेकिन व्हेन इट कम्स टू एंटरप्रेन्योरशिप, जब कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने का, कोई नया स्टार्टअप लॉन्च करने का, कोई नया प्रोडक्ट लेके आने की बात होती है, तो वहां पे विमेन का पार्टिसिपेशन है ही नहीं. तो व्हाई इज इट हैपनिंग कि एडमिशन बहुत लड़कियां ले रही है, लेकिन जब एक्चुअली उस नॉलेज को कन्वर्ट करने की बात आती है, देयर आर वेरी फ्यू वुमेन हु आर डूइंग इट. ये जब इसको स्टडी किया गया, देन दे रियलाइज कि प्रॉब्लम क्रेडिट एक्सेस में थी. मतलब बैंक से लोन ना ले पाना. विमेन क्यों नहीं लोन ले पा रही है? क्योंकि बैंक लोन तभी देता है जब आपका क्रेडिट अच्छा हो. क्रेडिट कब अच्छा होता है? जब आपका बैंकिंग हैबिट हो, आपका बैंकिंग अकाउंट हो जिसमें आपने सालों तक कुछ पैसे डिपॉजिट किए, आपका एक बिहेवियरल पैटर्न बैंक ऑब्जर्व करता है, फिर आपकी क्रेडिट वर्दीनेस को हाई एनालाइज करता है. अगर विमेन अब तक एम्पावर थी ही नहीं, उनका अपना बैंक अकाउंट नहीं था, उनके कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं थे, तो इररेस्पेक्टिव कि वो कितना पढ़ लिख गए हो, उनको क्रेडिट बैंक से इजीली नहीं मिल पाता. सो दैट वाज highlighted and then the issue was resolved by coming up with new policies. What is the way forward ऐसे सिचुएशन में फॉर इंडिया के कंटेक्स्ट में? एक कि अक्रॉस द सेक्टर ऐसा जेंडर डेटा को इवेल्युएट करो, जेंडर डेटा को कलेक्ट करो. ठीक है. हम सिर्फ जो पार्टिसिपेशन है ना, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, सिर्फ उसको ही ट्रैक कर रहे हैं. हम लोग ये नहीं ट्रैक कर रहे कि रिटेंशन क्या है, री एंट्री कितना है, लीडरशिप लेवल पे कितने पहुंचे हैं, एंड जो वर्क है उसका क्वालिटी क्या है. दीज फैक्टर्स शुड आल्सो बी असेस्ड, दीज फैक्टर्स शुड आल्सो बी इवैल्यूएटेड, नॉट जस्ट कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया. जेंडर बजटिंग भी होना चाहिए. जेंडर के हिसाब से बजट में एक पर्टिकुलर अमाउंट फीमेल जेंडर के लिए हर बजट में अलग से रखना जरूरी होगा. फॉर एग्जाम्पल कोई भी से डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ही ले लीजिए, उसमें बजट जो है वो जेंडर्ड नहीं था, अब उसको जेंडर्ड करना होगा. जो अभी के लिए जो बजट है वो सिर्फ वेलफेयर स्कीम तक ही है, बट इट हैज टू बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड ऑल दिस. मतलब एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी सब में जाना चाहिए. एंड सच एक्टिविटीज शुड बी रेप्लिकेशन अक्रॉस द स्टेट्स. आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, है ना. इनका ये 3 स्टेट में तो $1 ट्रिलियन इकोनॉमिक गोल पड़ेगी ना. ठीक है. चलो क्विकली सॉल्व दिस क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन.
आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा विथ रेफरेंस टू विमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इंडेक्स. Consider the following statement. Uttar Pradesh is the first state in India to launch WE index. Answer is one is statement one is correct. B is eliminated. It tracks women participation across 5 levers, including employment, entrepreneurship, and safety. Yes. So 2 is correct. So C is gone. Excuse me. The index has been mandated by the Minister of Women and Child Development for all states. ये कहाँ आया? यही जो फॉर ऑल, ये एक्सट्रीम वर्ड्स डिप्लॉय करके हमें कंफ्यूज किया जाता है. तो स्टेटमेंट थर्ड इज रॉन्ग. आंसर इज ए. प्लीज वॉच आउट फॉर सच एक्सट्रीम वर्ड्स. ऑल, नन, है ना, एवरीवेयर, ऐसे जो एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं प्लीज लुक आउट फॉर देम एंड मोर ऑफन देन नॉट दोज आर रॉन्ग स्टेटमेंट्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज क्योंकि इसमें एक सिंबॉलिकल मीनिंग है. इसका शायद पॉलिसी के लिए बहुत ज्यादा यूटिलिटी नहीं है, बट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सिंबॉलिक इंक्लूजन, इंक्लूसिविटी और इनकम्पासिंग इंक्लूसिविटी, इस डायमेंशन से इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है. कर्नाटका ने सेंसस लॉन्च किया है, सर्वे बेसिकली टू सी the number of transgender and devdasi communities. ठीक है. की पॉइंट्स क्या है? फर्स्ट स्टेट कौन सा है? कर्नाटका. कर्नाटका फर्स्ट वुमेन एम्पावरमेंट इंडेक्स वाज बाय उत्तर प्रदेश एंड फर्स्ट सर्वे ऑफ ट्रांसजेंडर एंड देवदासी कम्युनिटीज ये है बाय कर्नाटका. इट इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सर्वे ऑफ सेक्सुअल माइनॉरिटीज. हमारे पास अब तक रिलीजियस माइनॉरिटीज है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज है. कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट रिलीजियस माइनॉरिटीज एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज. नाउ they have first of its kind done the sexual minorities. For sexual minorities, it is launched by what? Karnataka government. It is conducted. कहाँ पे हो रहा है ये सर्वे? एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी के जो सेंटर्स है अक्रॉस 31st डिस्ट्रिक्ट, वहां पे ये सर्वे हो रहा है. 40,000 प्लस ट्रांसजेंडर पर्सन को जो स्टेट में रजिस्टर्ड है उनको कवर करता है. एंड द डेटा, सर्वे का डेटा जो है, इट कलेक्ट्स ऑन हाउसिंग, ऑन एजुकेशन ऑफ दोज पीपल, ऑन एम्प्लॉयमेंट स्टेटस टू फ्रेम द इंक्लूसिव एंड टारगेटेड पॉलिसी. दीज आर द कीवर्ड्स. इंक्लूसिव एंड टारगेटेड पॉलिसी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है. यू कैन यूज इट योर मेंस आंसर्स. जो सर्वे लेने वाले, the people who are involved in the procedure of collecting data, they are also from the transgender community. Why? क्योंकि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के जो अगर इंफॉर्मेशन देने वाले और इंफॉर्मेशन सीक करने वाले वो भी अगर एक ही कम्युनिटी से हैं तो उनमें थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी ज्यादा आता है. वो थोड़ा ओपन फील करता है, थोड़ा सा वो ओपन अप ज्यादा होता है. दे डोंट विथ होल्ड द इंफॉर्मेशन, है ना. ट्रस्ट जल्दी बिल्डअप हो जाता है. दैट इज वाई ओपननेस एंड कंफर्ट को प्रमोट करने के लिए the enumerators are also from the transgender community. अब इसमें भी चैलेंजेस है जैसे कि नेटवर्क सर्वर ग्लिचेस आ जाता है क्योंकि डिजिटली आप कलेक्ट करें इंफॉर्मेशन वगैरह वगैरह, है ना. अब सिमिलरली देवदासी कम्युनिटीज का भी सर्वे हो रहा है, बट दिस इज नॉट फर्स्ट, दिस इज थर्ड सर्वे ऑफ देवदासी कम्युनिटी. अब सवाल ये, some of you might not be knowing which are देवदासी communities, है ना. तो इंडिया में some of you might be knowing it, जिनको नहीं पता उनके लिए मैं ब्रीफली एकदम बता देता हूँ. देवदासी कम्युनिटीज कौन होती है? यूजुअली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री, इंडिया में अलग अलग जगह पे कुछ टेम्पल के आसपास ऐसा कल्चर है कि कई बार कुछ वो प्रे करते हैं कि कामना करते हैं कि मुझे अगर ऐसा हो तो मैं ऐसा करूंगा, ऐसे होता है. तो कई बार कुछ लोग अपने जो ऑफस्प्रिंग्स है, बच्चे हैं या बेटियां हैं, उनको भगवान के चरणों में अर्पण कर देते हैं.
तो वो जिंदगी भर उस मंदिर के उस भगवान के दासी बनकर रहता है या दास बनकर रहता है। दे डू ऑल द चोर्स अराउंड दैट, सब कुछ करता है। मतलब कुछ कुछ जगह ऐसे है कि बालों में अगर आपकी जटाएं पड़ने लगे, किसी लड़की के बालों में अगर जटाएं पड़ने लग गई, जटा मतलब रफ होने लग गए, कनेक्ट होने लग गए, जो जाड़े होने लग गए, तो उसको एज अ सिग्नल माना जाता है कि उनको देवदासी के लिए भगवान ने बुलाया, एंड दे आर लाइक छोड़ देते हैं उनको भगवान के चरणों में। कुछ कुछ जगहों पे ऐसे भी इंस्टेंसेस हुए कि दोज विमेन वर एक्सप्लॉइटेड, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, सेक्सुअली उनको एक्सप्लॉइटेशन भी हुआ है। उनका अपने फैमिली से कोई रिश्ता नहीं रहता है, बस वो भगवान के चरणों में छोड़ दिया जाता है। ठीक है, इसके रिलीजियस कॉनोटेशन में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वो हमारा पर्पस नहीं है डिस्कस करना, बट देवदासी कम्युनिटी वो है, वो उनका डॉक्यूमेंट्स, फैमिली ट्री, बहुत सारी चीजें एब्सेंट है, क्योंकि उनको कोई आके छोड़ गया और वो वहीं पे मंदिर में है, मंदिर के साथ ही रहता है, उसी कल्चर के अराउंड सराउंड हो चुके हैं। ठीक है, जिंदगी भर वो भिक्षा मांगकर गुजारा करता है और डिवोटी बन के रहता है। सो उनका बहुत जगहों पे एक्सप्लॉइटेशन भी हुआ है, तो इस ऐसे एक्सप्लॉइटेशन को रोकने के लिए, उनके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए ये सर्वे कंडक्ट होता है। दिस इज थर्ड सर्वे। ठीक है, अब इसमें इशू क्या है कि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड जो है उसके बाद, ठीक है, जो देवदासी है ना, जो इस कम्युनिटी में बिलोंग करते हैं, उनके बीच में ही अवेयरनेस नहीं है कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है या उनको कुछ फायदा सरकार से मिल सकता है, उनको ही खुद के पता नहीं है। एंड अगेन अगर कोई सर्वे है तो उसमें सर्वर या टेक्निकल ग्लिचेस आते ही है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज है, जो सेक्सुअल माइनॉरिटी है, मतलब ये ट्रांसजेंडर हो गए, सेक्सुअल माइनॉरिटीज, या फिर जो इन अ वे डिस्क्रिमिनेटेड कम्युनिटी जैसे कि देवदासी कम्युनिटी हो गई, इन मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए ऐसे का बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, जेंडर एंड वल्नरेबल कम्युनिटीज का डेटा आपको मिल जाएगा। फिर ये ऐसा काम करने से सोशल एक्सक्लूजन जो होता है, स्टिग्मा जो है, इकोनॉमिक डेप्रिवेशन जो है, इसके ऊपर भी पॉजिटिवली हम काम कर पाते हैं। वी नीड दिस काइंड ऑफ सर्वे, वी नीड दिस काइंड ऑफ डेटा टू ब्रिंग पॉजिटिव इम्पैक्ट। स्टेप्स टेकन सो फार, एक तो है कि द ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट ऑफ 2019, है ना, ये इट वाज अ मेजर माइलस्टोन था जिसने काफी सारे इश्यूज को सॉल्व किया है। इट रिकॉग्नाइजेस पर्सनस राइट, इट रिकॉग्नाइजेस पर्सन राइट टू सेल्फ परसिव्ड जेंडर आइडेंटिटी। किसी को बायोलॉजिकली कौन सा जेंडर है वो इरेलेवेंट हो जाता है, लेकिन किसी को अपना जेंडर अगर फील होता है कुछ और, तो उसका रिकॉग्निशन भी एक्सेप्टेबल है इस लॉ के अंडर। ठीक है, इट इंश्योर्स कि डिग्निफाइड एंड रिस्पेक्टेबल प्लेसेस उनको मिले सोसाइटी में। सोसाइटी शुड गिव देम रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, दे शुड नॉट फील एनी डिस्क्रिमिनेशन, नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड इन एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर सर्विसेज, वेलफेयर मेजर्स, ये सब कुछ प्रोवाइड किया गया है। ऑल्सो जस्ट लाइक नेशनल कमीशन ऑफ SC है, नेशनल कमीशन ऑफ ST है, वैसे ही a national council, not commission, national council for transgender persons was also set up on the advice of the central government, ठीक है, so that they can formulate the policies better. Quick question, take 30 seconds to solve it. With reference to Karnataka's recent initiative, consider the following statement. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको बस एलिमिनेट करना है। The survey enumerates are selected only from the government staff to ensure the neutrality. Wrong. हम लोगों ने अभी जो सर्वे का इंफॉर्मेशन सीख कर रहे हैं, the people who are collecting the information are also from the transgender community, है ना, to bring in openness. So statement 2 is wrong. So only option is option C. Rest options are incorrect. Now this is
फोर्थ आर्टिकल फॉर द डिस्कशन, सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर ऑन वक्फ एक्ट। अप्रैल में वक्फ एक्ट पास हुआ था। उसके अगेंस्ट जो मैंने कहा कि 65 के आसपास पिटिशंस गए थे, सम ऑफ देम वर फ्रॉम कॉमन पीपल, सम ऑफ देम वर फ्रॉम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ने कुछ वर्डिक्ट दिया है, उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओके, बैकग्राउंड क्या है, वक्फ जो है होता क्या है, एंडोमेंट मेड बाय द मुस्लिम फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस। 1995 का वक्फ एक्ट है। इट ये जो 1995 का एक्ट है ना, अकॉर्डिंग टू दैट एक्ट जो वक्फ प्रॉपर्टीज होती है, दोज आर रेगुलेटेड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट वक्फ बोर्ड। हर स्टेट में अपना एक वक्फ बोर्ड है जो इन वक्फ प्रॉपर्टीज को रेगुलेट करता है। जो 2025 में एक्ट पास हुआ अप्रैल में, इस एक्ट को चैलेंज किया था 65 पिटिशंस में। इन पिटिशंस जिन्होंने कोर्ट में इसके अगेंस्ट गए थे, उनका आर्ग्यूमेंट था जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 26 है, जो फंडामेंटल राइट है, विच टॉक्स अबाउट फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। आर्टिकल 26 ऑफ फंडामेंटल राइट्स, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, इसको काउंटरैक्ट कर रहा है, इसको ब्रीच कर रहा है अमेंडमेंट ऑफ 2025। ऐसा पिटिशनर्स का आर्ग्यूमेंट था, और अंडरमाइंस जो माइनॉरिटीज है उनके राइट्स को भी वो अंडरमाइन कर लेता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया। उस सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है उसको थोड़ा सा अपन क्विकली इवेल्युएट कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 4-5 चीजों के बारे में बात किया है, अब वो समझ लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। सेक्शन 3C जो है, कलेक्टर्स पावर, पहले ये जो एक्ट था ना 2025 वाला एक्ट, उसने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को कुछ पावर्स दी थी। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को यह पावर दिया गया था कि कोई भी प्रॉपर्टी वक्फ है या नहीं है, इसके लिए अगर कोई चैलेंज करता है, जब उसकी इंक्वायरी शुरू होगी उसी मोमेंट कलेक्टर उस प्रॉपर्टी को सीज कर सकता है, ठीक है। मतलब द मोमेंट द कंप्लेंट इज लॉन्च एंड द मोमेंट द इंक्वायरी इज लॉन्च्ड, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कैन सीज दैट प्रॉपर्टी फ्रॉम वक्फ। सुप्रीम कोर्ट ने इस पावर के ऊपर स्टे लाया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जिस मोमेंट इंक्वायरी स्टार्ट करोगे उस मोमेंट पे आप स्टे उस मोमेंट पे सीज नहीं कर सकते हो। यू कैन सीज इट वंस द इंक्वायरी इज डन एंड इट हैज बीन एस्टैब्लिश कि वो वक्फ जमीन नहीं है, उसके बाद, नॉट एट द बिगिनिंग बट एट द एंड, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कैन सीज द प्रॉपर्टी, ठीक है। सो यही इस यहाँ पे डिस्कशन किया है। ये आर्टिकल हैड एम्पावर्ड कलेक्टर टू इंक्वायर इफ प्रॉपर्टी क्लेम्ड एज वर्क इज गवर्नमेंट लैंड। लॉ स्टेटेड, जो अमेंडमेंट था, दैट द प्रॉपर्टी सीजेस टू बी वर्क एज सून एज इंक्वायरी बिगिंस। सुप्रीम कोर्ट ने ये जो बिगिनिंग वाला पार्ट है ना, उसको स्टे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रॉपर्टी विल बी विथ वक्फ until the final decision is delivered, ठीक है। क्योंकि इसको उन्होंने कहा कि आर्बिट्री सा लगता है कि एक बार पहले एस्टेब्लिश हो जाने दीजिए फिर चेंज कर दीजिएगा। सेकंड पार्ट, अंडर द एक्ट हैड सेड कि जो वक्फ बोर्ड है उसमें मुस्लिम्स मेजोरिटी होगी, नॉन मुस्लिम्स कम होंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कितने कम होंगे, वी नीड दैट नंबर। मतलब लेट्स से कि 22 लोगों का पैनल है तो उसमें से 10 नॉन मुस्लिम होंगे और 12 मुस्लिम्स होंगे। ये क्या है, वी नीड दैट नंबर। तो वो गवर्नमेंट ने सिर्फ इतना कहा था कि नॉन मुस्लिम जो होंगे वो माइनॉरिटी में होंगे, वो मेजोरिटी में नहीं जाएंगे, मुस्लिम्स विल बी इन मेजोरिटी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसके अगेंस्ट जाकर एक एडवाइस जारी किया जिसमें एक नंबर फिक्स किया हुआ है, ठीक है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट में सेंट्रल वक्फ बोर्ड होगा उसमें मैक्सिमम 4 ही नॉन मुस्लिम हो सकते हैं, जो स्टेट है उसमें मैक्सिमम 3 ही नॉन मुस्लिम्स हो सकता है, ठीक है। सेंट्रल जो काउंसिल है, सेंट्रल वक्फ काउंसिल विच इज कंपोज ऑफ 22 मेंबर्स, उसमें मैक्सिमम शैल नॉट कंसिस्ट मोर देन 4 नॉन मुस्लिम्स मेंबर। सिमिलरली स्टेट वक्फ बोर्ड जो है जिसमें 11 मेंबर होते हैं, स्टेट वक्फ बोर्ड हैज 11 मेंबर्स, उसमें भी नॉट मोर देन 3, मैक्सिमम 3 कैन बी नॉन मुस्लिम्स, ठीक है। इस लॉ में एक बात कही गई थी कि प्रैक्टिसिंग इस्लाम फॉर 5 years रूल, एक रूल था। दिस एज पर द अमेंडमेंट द लॉ रिक्वायर्ड person creating waqf to show Islam practice for at least 5 years। उन्होंने 5 साल तक
इस्लाम के वो प्रैक्टिशनर है, ये उनको प्रूफ करना पड़ता था। एससी सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोविजन पे भी स्टे ला दिया और कहा कि गवर्नमेंट का जो रूल होगा वेरिफिकेशन का वो आने दो, उसके बाद में आगे का डिस्कशन होगा। कुछ प्रोविजंस थे जिन्होंने स्टे लेकर आ गए सुप्रीम कोर्ट, जिसके बारे में मैंने अभी जस्ट बात किया। देयर आर सर्टेन प्रोविजंस जिसके ऊपर स्टे नहीं लाया, जो लॉ में है वो कंटिन्यू होगा, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन नहीं लिया, कोई स्टे नहीं दिया। वो कौन सा है? फर्स्ट, अबॉलिशन ऑफ वक्फ बाय यूज। ये जो टर्म है ना, अर्लियर लैंड यूज फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस लॉन्ग इनफ वर डीम्ड वक्फ। अब नाउ अबॉलिश टू प्रिवेंट एलिज्ड मिसयूज। बाय यूज कोई लैंड वक्फ की नहीं होगी, अगर डॉक्यूमेंटेशन है तो होगा। अगर यूज सिर्फ यूज कर रहे हो इसलिए वक्फ लैंड अब नहीं हो पाएगी। ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ लिमिटेशन एक्ट। पहले जब ये एक्ट आया उसके पहले वर्क्स वर एग्जेम्प्टेड, मतलब उनके ऊपर कोई टाइम बार नहीं था, नो टाइम बार फॉर रिक्लेमिंग एनक्रोच प्रॉपर्टी। किसी कभी भी वो 10 साल बाद, 15 साल बाद, वॉट एवर टाइम दे फेल्ट लाइक, वो उस एनक्रोचमेंट प्रॉपर्टी को क्लेम कर सकते थे। अब नहीं, टाइम बाउंड क्लेम्स होंगे, एक टाइम लिमिट को प्रोवाइड किया गया है, वो वैसा ही रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रोविजन विच, अब इस सब का सिग्निफिकेंस क्या है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑल ऑफ इट? सिग्निफिकेंस इसका ही है कि एक जुडिशियल बैलेंस, जुडिशियरी ने एक बैलेंस एस्टेब्लिश करने की कोशिश की बिटवीन रिलीजियस राइट्स व्हाइल एड्रेसिंग द मिसयूज और एडमिनिस्ट्रेटिव लैक्यूनास। जो ओवररीच, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवररीच एंड मिसयूज जो था उसको, और रिलीजियस राइट्स को, इन दोनों को बैलेंस किया है जुडिशियरी ने। माइनॉरिटी राइट्स वर्सेस स्टेट पावर, इसको भी बैलेंस किया है। दिस केस हाइलाइट्स द टेंशन बिटवीन कम्युनिटी ऑटोनॉमी एंड स्टेट रेगुलेशन। पॉलिसी इंप्लीकेशन क्या है? दिस order on Waqf Act of Supreme Court, which will guide the future interpretation of minority institutions management and secular governance। जो minority institutions का जो governance का पार्ट है उसको ये under the interpretation of this verdict it will be guided for the future operations। ठीक है। all right, अब इस MCQ को सॉल्व कर लीजिए। With reference to Supreme Court's interim order of the Waqf, consider the following statement. The court stated provision that gave district collectors power to immediately strip a property of its Waqf status during inquiry. Statement is correct. It capped the number of non-Muslims in the central and state Waqf board. Correct. The court upheld the retrospective abolition of the concept of Waqf by use. No. कहीं पे भी सुप्रीम कोर्ट ने रेट्रोस्पेक्टिव अबॉलिशन के बारे में बात नहीं किया। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है? लेट्स से कि टुडे इज 2025, कोई एक्ट आ गया जिसमें अगर रेट्रोस्पेक्टिव है तो वो आइडियली कोई भी लॉ आता है, कोई भी एक्ट आता है तो आज जिस दिन आया उसके बाद से वो अप्लाई होता है। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब उसके प्री डिसाइडेड डेट से भी अप्लाई हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं पे भी रेट्रोस्पेक्टिव अबॉलिशन के बारे में बात नहीं की है।
So answer is 1 and 2 only. Statement third is wrong. ओके, दिस इज आवर फाइनल. ये बहुत क्विकली जाएंगे क्योंकि इसमें सिर्फ फैक्ट्स है, कुछ डेटा है, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं. ये क्या हुआ है, मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, दैट शुड सफाइस. जो कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो होती है, मतलब सारे, सी अभी आपको, हाँ, जो हाईएस्ट आर्मी ऑफिसर्स है, मतलब लेट्स से सीओएस जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है, उनके नीचे इंडिया के डिफरेंट कमांड है. फॉर एग्जांपल पुणे में सदर्न कमांड है, जो सदर्न कमांड इज अ वेरी, southern command head is a very high position in the army. Similarly is eastern command, similarly there is a western command, there is a north command, northern command. ऐसे कमांड्स है. तो ये और अलग अलग फोर्सेस के कमांड है. जो कमांड्स है सारे उनके एक कॉन्फ्रेंस होती है, कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, जो ऑलमोस्ट आई थिंक हर 2 साल में होती है. वो ईस्टर्न हेडक्वार्टर्स में, ईस्टर्न कमांड के हेडक्वार्टर्स में, जो कि कोलकाता में बेस्ड है, वहां पे कंडक्ट की गई, जहां पे प्राइम मिनिस्टर सर वर प्रेजेंट एंड ही पुश्ड फॉर आत्मनिर्भरता एंड फॉर द डिफेंस रिफॉर्म्स. इसका थीम ईयर ऑफ रिफॉर्म्स, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द फ्यूचर. प्राइम मिनिस्टर जी प्रेजेंट है, तो ही एम्फसाइज्ड मोर ऑन ग्रेटर सिनर्जी बिटवीन फोर्सेस, आत्मनिर्भरता एंड देन इनोवेशन इन डिफेंस, है ना. इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन्होंने ये क्लियर कट मैसेज दिया हुआ है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो आया है दैट इज न्यू नॉर्मल. ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट जस्ट वन ऑफ द इंसिडेंसेस. अगर ऐसा गलती होगा फिर से पाकिस्तान या किसी भी नॉन फ्रेंडली कंट्री से, तो उनको उतना ही प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्ड दिया जाएगा. ऑपरेशन सिंदूर अब न्यू नॉर्मल है, ठीक है. इट हैज बिकम अ न्यू नॉर्मल पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर. इस कॉन्फ्रेंस का फोकस एरिया क्या था, स्ट्रक्चरल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑपरेशनल रिफॉर्म्स, जिसमें फोर्स के मॉडर्नाइजेशन के ऊपर डिस्कशन हुआ है, इंटीग्रेशन एंड जॉइंटनेस के ऊपर डिस्कशन हुआ है, एंड मल्टी डोमेन वॉरफेयर कैपेबिलिटीज के ऊपर डिस्कशन हुआ है. मल्टी डोमेन वॉरफेयर का मतलब क्या होता है, एयर एयर डोमेन हो गया, वाटर, ओशन, नेवल फोर्सेस, लैंड, ये तो पहले से ही थे, लेकिन मल्टी डोमेन में अब इंफॉर्मेशन वॉरफेयर आ गया है, साइबर वॉरफेयर आ गया है, स्पेस वॉरफेयर आ गया है ना, नैरेटिव वॉरफेयर आ गया. ये सारे वॉरफेयर को भी इंटीग्रेट करने की अब जरूरत है, ठीक है. ऑल राइट, ठीक है. आज के डिस्कशन में इतना ही. देयर इज वन एमसीक्यू, यू कैन गो थ्रू इट एंड इट इज वेरी इजी. आप कोशिश करिएगा इसको सॉल्व करने की. एंड दिस इज अबाउट स्मार्ट बुक्स. अब तक स्मार्ट बुक जो थे एपीएससी और यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए जो वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड किया था सीएसएपी ने, वो अब तक इंग्लिश में अवेलेबल था. नाउ इट हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू एसएमएस मीडियम एज वेल. इट इज अ क्वालिटी कंटेंट. यू मे get access to it. You can connect on this number and get your copies. All right, thank you so much for joining us, and please share your valuable feedbacks, valuable comments. You can connect with me on my number. You can message me. You can clearly tell me कि सर ये अच्छा लग रहा है, या ये थोड़ा गलत हो रहा है, या ये थोड़ा improve किया जा सकता है. I'm all ears. Whatever comments you have, please do share with me and with the team, so that we can improve with every passing day, and we can contribute more towards your journey from dreams to success. ठीक है, चलो, all the best, study well, bye.